اچھا اب میں پیش کرتا ہوں مفتی شمائل کو اپنے عدالت میں. جی مفتی شمائل صاحب. مفتی شمائل کو آپ اپنی عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ ارے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں یار. آپ کا چینل ہے, آپ لوگ یہاں پہ استاد ہو ہمارے بھائی. مفتی صاحب ایکسلنٹ سینس آف ہیومر ود عامر بھائی ٹو. آئی لو اٹ. جی تھینک یو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گلزار صاحب ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یوٹیوب میں ایک شارٹ اپلوڈ کیا تھا اور اس کا جو ٹائٹل آپ نے لکھا تھا وہ کس طرح کا ٹائٹل ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میں اس پر بھی بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ انسیسٹ کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. آپ میری عدالت میں آج. اچھا, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں انسیسٹ کو صحیح سمجھتا ہوں یا غلط سمجھتا ہوں. صحیح سنا ہے آپ نے. میری دیکھیں, ہماری کوئی ریلیجیس کتاب نہیں ہے, کوئی ہماری وہ نہیں ہے. میں میری یہ نظر نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک منٹ آپ پھر آپ تقریر کرنا شروع ہو گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی مذہب کو فالو کرتے. بھائی آپ موریلٹی کے تو قائل ہے نا. آپ کے نزدیک انسیسٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اتنا بتا دیں ہاں یا نہ. میری نظر میں غلط ہے فار مینی ریزنس. وہ ریزنس پوچھیں گے میں بتا دوں گا آپ کو. ہاں جی بتائیے. ہاں دیکھیں, اس کا سب سے پہلے تو آپ کا بایولوجیکل اس کے پرابلم آ سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 اب آپ ایک منٹ نہیں, ترتیب سے چلیں گے. آج جو ہے میرا نمبر ہے, گھبرائیں نہیں آپ. ترتیب سے چلیں گے. آپ مجھے کٹ کریں گے, بات پوری نہیں جائے گی. ایک منٹ. جہاں تک مجھے معلوم ہے, اگر میں غلط ہوں تو باقی مفتی صاحب میری اصلاح کیجیے گا. بایولوجیکل ایشو اس وقت ہے کہ جب ان کی اولاد ہو. اگر اولاد نہیں ہے تو بایولوجیکل ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بھائی اور ایک بہن, سگے بھائی بہن انسیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اولاد نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا سمپل جواب ہے, سمپل جواب سنیے گا. اس وقت آپ پہ جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا تھا, تو میں تو آپ سے سوال مفتی صاحب یہ پوچھوں گا کیسے الاؤ کر کرنے پر ہی آؤں گا جناب. سمپل سنیے گا اور ادھر ادھر. جی میں اللہ نے جو الاؤ کیا میں وہیں آ رہا ہوں. میں تو وہیں جاؤں گا نا, میں اور کہاں جا سکتا ہوں؟ میں وہی بتاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں, بھائی بہن آپس میں جنسی تعلق قائم کر رہے ہیں, اولاد نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی موریلٹی کے حساب سے یا آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیں. غلط ہے, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. مجھے اللہ, میں نے یہ بھی کہا تھا اللہ مجھے کہے گا بھی نا, جیسے آپ نے کہا تھا اللہ مجھے کہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کی آپ نے بات کی تھی. میں نے یہ لیکن نہیں مجھے کہا اللہ کہے گا تب بھی میں غلط سمجھتا ہوں. معاف کیجیے گا گلزار صاحب, آپ حضرات کی جو منافقت ہوتی ہے نا وہ آج ایکسپوز ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوئی, آج بھی ہوگی, خود سے آئندہ آپ بھی نے ہوگی. نتیجہ نکال دیا, خود سے آپ کنکلوژن میری نکال بات دیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں. میں ایک منٹ ذرا یہ بتا دیجئے گلزار بھائی, یہ بتائیے کیوں غلط ہے وہ. جی میں بس یہی پوچھ رہا ہوں, سمپل کیوں غلط ہے یہ بتائیے. بایولوجیکل ریزن تو یہاں نہیں پایا جا سکتا جو میں نے آپ کے سامنے سینیریو رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں ایک اور اینگل سے جواب دے دیتا ہوں, اور پھر میں آپ کی آڈیو بھی میں نے نکال لی جو آپ نے فرمایا تھا. صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہاں, ہے, میں پہلے نے آپ آڈیو نکال لی ہے. بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیوں غلط ہے. میری اپنی نظر میں جب بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے جو اور لڑکی کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سوسائٹی کو آگے بھی چلنا ہوتا ہے. سارے بہن بھائی کے اوپر چڑھ جائیں میں گے. آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اب ایک بھائی بہن کے اندر وہ جذبات پائے جا رہے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں انسیسٹ. آپ ان کے انسیسٹ آپ نے کرنے کو مجھ سے صحیح سوال کہیں گے پوچھا. یعنی آپ کے اندر جذبات نہیں ہے مثلا, اوکے دوسرے کے میں اندر ہے, جواب دے دوں. آپ کو اجازت دیں گے, صحیح سمجھیں گے یا نہیں یہ بتائیے. میں اس کو کہہ رہا ہوں نا, میں بالکل غلط سمجھتا ہوں میری سوچ میں. کیوں نہیں, کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں غلط کہیں گے آپ؟ آپ نے کہا کہ بھائی جذبات فطری طور پہ نہیں ہوتا, لیکن اگر ایسا کوئی ہے جس کے اندر جذبہ ہے, جذبات ہے, پائے جا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر کس بیسس پہ آپ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں؟ اچھا, پہلے آپ نے میری رائے پوچھی, اب میں نے بولا میں غلط سمجھتا ہوں, آپ کو رہے کوئی ہے, اب آپ 3rd person پہ جا رہے ہیں. ارے 3rd person میں جانے کا کیا مطلب؟ آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ غلط ہے, میں اسے غلط سمجھتا ہوں. اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی ہے کہ بھائی فطری طور پہ سب کے اندر ایسا ہوتا ہے, تو یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ سب کے اندر فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہ رہا ہے, آپ اسے صحیح قرار دیں گے یا غلط قرار دیں گے؟ صحیح قرار نہیں دیں گے, غلط قرار دیں گے. تو کیوں دیں گے ان دو کو جن کے اندر جذبات پائے جا رہے ہیں بھائی بہن کے اندر جنسی تعلق قائم کرنے کے, آپ انہیں غلط کیوں قرار دیں گے؟ مجھے سمپل سا یہ جواب دیجیے. ہاں ٹھیک ہے, نہ بایولوجیکل ریزن ہے اور نہ ایسا ہے کہ جذبات نہیں ہے, دونوں صورتیں یہاں پہ جذبات پائے جا رہے ہیں. کیا جواب ہے آپ کا؟
हाँ ठीक है, अब पहले मेरे से आपने पूछा, मैंने अपना राय दे दी ना, अब आप जम करके जा रहे थर्ड पर्सन क्या अगर करे तो मैं क्या सोचूंगा, यही पूछ रहे हैं आप? नहीं भाई गुलजार भाई आपके बारे में तो पहले दिन सवाल नहीं हुआ, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ, एक आम सिनेरियो किया जा रहा है कि एक भाई बहन बगैर किसी बायोलॉजिकल रीजन के आपस में जज्बात मौजूद हैं, इंसेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या मसला है? मुफ्ती साहब, आदम की औलाद भी तो थर्ड पर्सन थी ना हमारे लिए। हाँ ये बात भी सही है, तो बहस कर रहे थे आप, अब आपके सामने एक अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, आप पहले साबित कर दें कि वो अल्लाह का कदम ठीक था। अरे 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 ये गलत बात। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही रहा। गुलजार भाई ये बैसाखी है, ये बैसाखी मुफ्ती यासिर साहब, आमिर भाई अभी रुकेगा, अभी 1 to 1 चलने दे। देखें, मुफ्ती शुमाइल ने बात छेड़ी थी, सही, मैंने नहीं छेड़ी थी ये बात, मुफ्ती शुमाइल ने बात की थी। जी हाँ, मुफ्ती शुमाइल साहब, आप मुझे साबित कर दें कि अल्लाह का कदम सही था, बस बहन भाई का उन्होंने सेक्स करवाया अल्लाह ने। मैं तो अपनी मोरालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारी मोरालिटी कहाँ से आती है, क्या है, हमने तो सरातन उसी दिन बता दिया। आपने जिस तरह मेरी क्लिप को पेश किया है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन इस तरह चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इंसेस्ट गलत है, वजह पूछी गई, आपने कहा कि बायोलॉजिकल रीजन है, मैंने कहा कि भाई इस सूरत में नहीं पाई जाएगी, आपने कहा कि भाई जज्बात नहीं पैदा होंगे उनके अंदर। मैं कह रहा हूं कि ऐसे अगर पैदा हो जाएं जिनके अंदर जज्बात थे और मौजूद हों, तो फिर आप क्या उसे सही करार देंगे या गलत करार देंगे? गलत करार देंगे तो उस सिचुएशन में क्या रीजन है, ये सिंपल सा जवाब दीजिए, आप इधर उधर ना भागिए। ठीक है, इट इज सब्जेक्टिव, पूरा जवाब सुनिएगा आप, ठीक है, पूरा जवाब सुनिएगा। मोरालिटी सब्जेक्टिव है, आप लोगों की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर अल्लाह ने इजाजत दे दी हजरत आदम के बहन भाई को सेक्स का, आज आप कह रहे हो ये गलत है, मैं आपसे पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी चेंज क्यों हो गई सब्जेक्टिव में? बस मैं पहले बता रहा हूँ, अभी आप अपने इस पे आइए। आपने ये बात कही है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, यानी आपकी मोरालिटी के नजदीक ये गलत है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी अपनी जाती राय में गलत है फॉर मैनी रीजंस। नहीं तो कौन से एक रीजन नहीं दिया अभी तक के, वो रीजन तो पता चले नहीं ना, आपने जो 2 रीजंस बताए वो भोंडे रीजंस है, वो कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, बायोलॉजिकल रीजंस भोंडे हो गए? क्या आपको पता ना कदर मैरिज से अगर औलाद ना हो, ना ये मेरे साथ इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने कह दिया कि औलाद ना हो तो वहां कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। आपने कहा कि जज्बात नहीं पाए जाते, जज्बात अगर पाए जा रहे हैं तो क्या आप सही करार देंगे? आपने कहा नहीं देंगे, अब क्या रीजन है ये बताइए। कोई अगर दूसरा करे, या आप मेरे पर से तो हट गए ना, दूसरे की बात हो रही है, राइट? मैं तो थर्ड पर्सन की बात मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, असल में ये घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे ताल्लुक से कहा कि भाई मुफ्ती शमाइल साहब तैयार बैठे हैं डैश 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 करने के लिए, अलियाजुबिल्ला। ये आप लोगों का जो तरीका है, देखिए आप यहाँ पे आके कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। अभी पीछे जाएंगे, एक शॉर्ट अपलोड करेंगे, शेम 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 शेम, ये क्या हो रहा है, बदतमीजी है, और ये मतलब क्या तरीका है? यानी आप ये बचपना तो खत्म करें, आप अपने अंदर एक इल्मी लेवल करें ना, लॉजिक पे बात करें। आप पर्सनल गए ना, आप मुझे इल्मी जवाब दे सकते थे। कॉल सुना देता हूं, जो आपने क्लिप किया मैं सुना देता हूं, वो क्लिप अच्छा सारी सुन ले। 1 मिनट, आपने जो उस वीडियो का टाइटल रखा है वो आप बताएं, ये क्या एक इंसान के अखलाक के मुताबिक ये है वो चीज जो आपने ये बात कही है? अच्छा बहरहाल बात कहीं और नहीं, आपको आज मुझे सुने तो भाई, मैं वापस वहीं आप मुझे सुने तो। गुलजार साहब माफ कीजिएगा, आपने ये कहा है कि जज्बात नहीं पाए जाते, मैंने कहा अगर जज्बात भी पाए जा रहे हैं, मैंने नहीं कहा आपने कहा तौर पे जज्बात नहीं पाए जाते हैं। मैंने ये कहा कि एवोल्यूशन के जरिए जब बहन भाई ज्यादा, वरना अगर जज्बात पैदा होते तो हर घर में बहन भाई नहीं एक दूसरे पे चढ़े होते। जरा बात पूरी सुना करें ना, आप लोग बीच में कट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, एक क्लिप पूरी दुनिया को सुनाते हैं जो आपने बात बोली थी, बस मैं सुना देता हूँ, आप बोले तो बाद में सुनाएंगे, पहले आप अपना जवाब देंगे आज इंशाल्लाह। आप पहले जवाब आपको दे दिया। गुलजार भाई अब आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि मुफ्ती शमाइल को जज करें, क्योंकि आप उनकी अदालत में खुद ये कह चुके हैं। अच्छा, मैं आपको अदालत में पेश करूंगा। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये वाली जो सहूलत है आपने अपने लिए खुद खत्म कर दी है लाइव। यस, सुने, आपने ये कहा है कि भाई बहन जो है उनके अंदर जज्बात नहीं पाए जाते, अगर पाए गए आप उसे दुरुस्त समझेंगे इंसेस्ट को या नहीं समझेंगे? मुझे ये बताइए। नहीं समझेंगे तो क्यों नहीं समझेंगे? वैलिड रीजन दीजिए।
आवाज नहीं जा रही है क्या? म्यूट कर दिया उन्होंने अपने आप को, अब कर दिया अच्छा जी हाँ, जी। एक्सप्लॉयटेशन आप समझते हैं कि हो सकता है अगर बहन भाई के सेक्स को अलाउ कर दिया जाए, जिसमें जो पावरफुल भाई होगा वो सुन, अब जवाब काटिएगा नहीं, आप मेरा जवाब नहीं काटिएगा। एक तो रीजन एक्सप्लॉयटेशन का होता है मुफ्ती शुमाइल साहब, अदब के साथ देखें, घर में बहन भाई होते हैं, जो जिस्मानी तौर पे ताकतवर होगा, इमोशनली ताकतवर होगा, वो उसको एक्सप्लॉयट कर सकता है। एक बात मेरे हो भाई, गई, मैं आपके मेयार के मुताबिक बता रहा हूं, दोनों में कंसेंट है, दोनों अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, आप उसे सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं ये बताइए, वो इधर उधर ना जाएं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी पर नहीं चढ़ रहा है, अगर चढ़ रहा है तो उसकी मर्जी से चढ़ रहा है। मैंने आपको, अब मैं आपको जवाब दिए जा रहा हूँ। एक होता है टैबू आर्गुमेंट भी इसमें डाल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जिस तरह इवॉल्व हुई है ना, उसमें एक टैबू भी बन गया है। मगर आप देखें, आप मुझे बताएं ना, अल्लाह ने, मैंने आपको सारे जवाब दे दिए, अल्लाह ने कैसे अलाउ कर दिया था ये मैं बता देता हूँ। एक मिनट, मुफ्ती गुलजार साहब, साहब, आप सबसे पहली बात, गुलजार एलिया साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास इसका कोई जवाब कयामत के सुबह तक नहीं हो सकता, लिख लीजिए आप अच्छी तरह। अब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप, पूरा मामला आपका घूम फिर कर सोसाइटी पर ही आएगा। मैं आपसे अब ये नहीं सवाल करूंगा कि आप सोसाइटी से हट कर जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे, सहरा में जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं मान लेता हूं सोसाइटी ने गलत कहा इसलिए ये गलत है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके एतबार से सोसाइटी ने गलत कहा इसलिए ये गलत है, तो क्या अगर सोसाइटी से सही की मैंने बात किया आपने, नहीं आप यार मुझे टाइम तो दिया करें मुफ्ती शुमाइल साहब, हम नाराज मत हो यार, मैं सॉरी करता हूं अगर आप नाराज हुए मुझसे भाई। मैंने आपको रीजंस दिए, बायोलॉजिकल को आपने बोला साइड पे रखो, मैंने आपको साइड पे रखो, नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ मेरे साथ इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा। मुझे बात तो पूरी करने दें, फिर दोबारा सुन ले। आप मैंने मुझे जो बात पूरी करने दें। बायोलॉजिकल रीजन उस वक्त है जब औलाद नहीं रखेंगे तो बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, जब नहीं है तो फिर आप बायोलॉजिकल रीजन पेश ही नहीं कर सकते। आप मुफ्ती शुमाइल भाई, मैं तो आपसे मुझे अब कट करते हैं, मैंने आपको अथॉरिटी रीजन दिया, एक्सप्लॉयटेशन रीजन दिया, टैबू रीजन दिया, इतने सारे रीजन दे दिए। अब उसको आप सोचिएगा, जवाब जरूरी नहीं आप मुझे दे दें। सारे रीजन इनवैलिड है ना गुलजार भाई। आपकी नजर में एक सिनेरियो ऐसा है कि यानी दो बहन भाई हैं और मिसाल के तौर पर दोनों के दरमियान फुल कंसेंट है, जबरदस्त मोहब्बत है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, औलाद चाह नहीं रहे हैं, तो अब मसला क्या है? अच्छा, इसका भी जवाब सुन लें। औलाद भी नहीं चाह रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा जज्बात भी हैं। अब आपको कैसे पता कि बंद कमरे में क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा? बात पूरी सुनिएगा। हम देखें, मैं सुनिए, आप असल में पॉइंट नहीं समझ पा रहे। गुलजार भाई एक मिनट, मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। गुलजार भाई, मैं एक पॉइंट समझा देता हूं आपको। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दो किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिनेरियो मानकर चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये दो लोग कर रहे हैं, हम एक सिनेरियो मानकर चल रहे हैं कि मान ले कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है? मान तो सकते हैं ना? और क्या बीवी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती? बंद कमरे के अंदर बीवी की भी हो सकती है। क्या ना आंसर? जी, अब कीजिए जी। अच्छा, बीवी को चॉइस किया जाता है, बहन आपकी बाय बर्थ होती है आमिर भाई। अच्छा, अब मेरी बात, अरेंज मैरिज भी होती है। एक मिनट, यही कंसेंट का मसला है ना भाई। ठीक है, वो बाय बर्थ आपकी बहन है, लेकिन कंसेंट हो गया ना दोनों के दरमियान। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट बोलने देंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आप कट कर देते हैं, मेरी बात पूरी नहीं जाती। नहीं, कट नहीं करना है, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन वो बात ना बोलिए जो आप बोल चुके हैं, कोई और रीजन दीजिएगा। देखें मुफ्ती साहब, सोसाइटी ने गलत कहा या सही कहा, इसको और ले लेते हैं। यार आप आमिर भाई हंसेंगे यार, फिर मैं बात कैसे पूरी कर पाऊंगा भाई? आप हंस रहे ना, मैं भाई आप ये कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, हंसने पे पाबंदी मैंने टोका तो नहीं है, हंसने पे पाबंदी नहीं, आप हंसें, लेकिन वॉइस को ऐसा लगता जब आप गुलजार भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आप जब शुरू करते हैं ना, देखें सिंपल बात, मुझे मेरी हंसी निकल जाती है, मैं क्या चलो ओके ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग बात पूरी नहीं होने देते हैं। मैंने कहा कि भाई सोसाइटी इसको गलत कह रही है, बहन भाई इंसेस्ट को गलत सही कह रही है। बाय एवोल्यूशनरी भी ये एक तरह की चीज आई है हम इंसानों में कि जब हम ग्रो करते हैं, अब काटिएगा नहीं, बहन भाइयों के अंदर वो जज्बात इन जनरल नहीं होते। अगर आपको ही मैंने अभी देखिए, मैं काटूंगा आपको, मैं आपको काटूंगा इसलिए कि आप वही बात कह रहे हैं जो कह चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि इन जनरल बहन भाइयों में वो जज्बात नहीं होते। हम ये मान के चल रहे हैं कि हैं, चूंकि इस तरह की दुनिया में लोग मौजूद हैं कि जिनके दरमियान ये जज्बात होते हैं, प्रैक्टिकली मौजूद हैं।
है ना, तो अब इसको एक जनरल प्रिंसिपल बना लेते हैं कि इस फियर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ यूज। अब मैं आपसे, मैंने जवाब दे दिया, मैं पूछता हूँ अल्लाह ने कैसे अलाउ किया था, आप इसका चलिए जवाब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, मसलन चले आपसे मैं सुनिए सवाल करता भाई, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भाई बहन पैदा हुए एक घर में और उसके बाद किसी जंग के नतीजे में दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, एक मुल्क में पला, दूसरा दूसरे मुल्क में पला, दोनों का आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ, और फिर तीसरे मुल्क में मिले और आपस में एक दूसरे से शादी हो गई, पता चला कि ये तो बहन भाई थे, ठीक है। अब ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहते आ रहे हैं, बाद में पता चला कि ये बहन भाई हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, एक होता है ग्रेटर कॉज आर्गुमेंट, आप कह रहे हो ना कि वो बराबर भी हो, अथॉरिटी भी यूज नहीं हो रही, लेकिन हम देखेंगे कुछ अरसे बाद ऐसा हो सकता है कि उसको मिसयूज किया जाने लगा हो, वो बहन भाई हो, लेकिन अल्लाह ने अलाउ कैसे? मैंने आपको एक सिनेरियो दिया गुलजार भाई, एक सिनेरियो दिया और आप उसको डॉज करके फिर आगे चले गए। मैं वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इस सिनेरियो में हमें तो पता है कि हम क्या कहेंगे, आप बताइए आप क्या कहेंगे। वो जो सिनेरियो आपने सिनेरियो रिपीट करें आप दूसरे अल्फाज में, ताकि मैं समझ सकूं। एक फैमिली में लड़का लड़की पैदा हुए, दोनों बहन भाई हैं, उसके बाद पैदा होते ही मसलन सीरिया में हुए या यूक्रेन में हो गए, कहीं ऐसी जगह जहां वॉर चल रही है, वॉर के नतीजे में ये जो है अलग अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, ठीक है, दोनों बिल्कुल हकीकी बहन भाई हैं। उसके बाद पले बढ़े और कहीं मिल गए, आपस में मोहब्बत हो गई और शादी कर ली, एक साथ रहने लगे। ये शादी नहीं की, मुल्हिदों के यहाँ शादी नहीं होती, एक साथ रहने लगे। अब बाद में इनको पता चला कि भाई तुम तो हकीकी बहन भाई हो, अब आपका क्या फतवा होगा? हमारा फतवा तो हमें पता है, आपका फतवा क्या है? अच्छा, अगर उनको मालूम ही नहीं चला ना, तो नहीं पता चल गया। अब हाँ, मेरी नजर में गलत है, अब उनकी मर्जी है, वो क्या इसका फैसला करते हैं, उनके जज्बात वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों गलत है? वैलिड रीजन दीजिए। हाँ, क्यों गलत है? देखिए, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, मसलन वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, उनको औलाद चाहिए ही नहीं, ठीक है, कोई सोसाइटल मसला नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मसला क्या है फिर? मुफ्ती साहब, मैं आपके सिनेरियो पे जवाब तो फिका पढ़ने का कमाल ही है। इसका जवाब ये है मुफ्ती साहब, बाजरत के साथ, कि आपने कहा ना दो बहन भाई को पता नहीं चला, बिछड़ गए थे, बाद में हुआ, इसमें भी पता चल गया यार, हाँ पता चल गया ना। अब इसमें भी हम लॉजिकल बात कर सकते हैं, हार्म प्रिंसिपल आ जाएगा कि उनके बच्चे होंगे, उनको पता चलेगा, वो सफर कर सकते हैं। नहीं भाई, वो बच्चे नहीं कर रहे ना, वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, हम दोनों मुल्हिद हैं। गुलजार तो वही तो बात है, रीजन है इन 3-4 रीजन के अलावा सारे सवालों के जवाब दिए। आप एक पे एक सवाल करते हैं, उसका मैं आंसर देता हूँ। मैं आपसे अल्लाह वाला सवाल पूछ रहा हूँ, वो आप जवाब नहीं दे रहे, सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं आप। वैलिड रीजन जवाब दे रहा हूं, वही इनवैलिड रीजन। गुलजार भाई, आप इस पोजीशन में नहीं कि आप हमसे सवाल करें, क्योंकि आपने सहूलत खत्म कर लिया, आप हमारी अदालत में हैं। मैं आपको जज नहीं जवाब देगा, मुल्जिम जवाब देगा। ओके, अब आप मुझे जब कहेंगे तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बीच में इंटरप्ट। गुलजार भाई, मैं आपका वकील बन जाऊं, आपका वकील बन जाऊं इस अदालत में, अगर कहते हैं। आमिर भाई, मैं तो आपके लिए वो दुआ करता हूं जो हजूर करते हैं कि हजरत उमर को इस्लाम कबूल करवा दे। आप तो हम चाहते हैं आप मुल्हिद हो जाओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो। मुफ्ती शुमाइल साहब, आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने कैसे, आप सवाल नहीं करेंगे और करेंगे भी तो बाद में, पहले मेरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिंपल से मैं क्वेश्चन दोबारा 10 क्वेश्चन, मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। समझ में आ रहा है सवाल? नहीं गुलजार भाई, अभी तक आपके एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। जो भी असल में वो एक ही सवाल है, उसका आप जो भी जवाब देते जा रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं, और उसकी वजह है कि मैंने आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया है जिसमें आपके जो भी रीजंस है ना, वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब मुझे बताइए तो उसमें आपका फतवा क्या है? अच्छा, जवाब आपने बोला वो मुल्हिद हैं, क्या मुल्हिद बच्चे पैदा नहीं कर सकते? तो आप तो इतना रेयर प्रिंसिपल ला रहे हैं और मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे भाई आप मेरी बात सुन ले। अल्लाह ने कैसे अलाउ सेक्स कर दिया? नहीं जा रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। हम जो कहते हैं, जो मानते हैं, फख्र से मानते हैं और फख्र से कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। आप इतनी बात क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, तो क्या मेरे पास इसका जवाब नहीं है। Can I ask one small question? अगर मुफ्ती शुमाइल साहब No, not right now. You cannot ask any question until and unless you reply to my गुलजार भाई को। ये कौन सी अदालत है कि भाई आज मेरे सवाल का जवाब नहीं पूछे जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना वकील कर लें, मैं कह रहा हूँ वकील कर लें गुलजार भाई, आप नहीं मान रहे। साइंस के खुदा आमिर भाई को मुल्हिद बना दे, हजरत उमर की तरह हम ताकतवर हो जाएं। ए साइंस के खुदा, आमिर भाई जैसी इंटेलिजेंस। और अब सुने,
मुफ्ती शुमाइल साहब, एक मुझे सवाल, दुनिया सुन रही है कि मुझे आप सवाल नहीं करने दे रहे। एक दुनिया मुझे सुनती आई है, अभी भी सुन रही, आइंदा भी इंशाल्लाह सुनते रहेगी। अल्लाह के कलिमे को मैं फैलाता रहूंगा, आपके ना चाहने के बावजूद उंगलियां चबाते रह जाए, फैलता रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सिंपल सा सवाल, इधर उधर हरगिज ना जाएं। आप ये बताएं कि जो इंसेस्ट है वो गलत क्यों है, जो रीजंस आपने दी हैं वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। अब कोई ऐसा सिचुएशन है वहां पे आप इंसेस्ट को गलत क्यों कह रहे हैं? सिंपल सा सवाल है भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप बताएं, लोगों को साबित करें कि आप जो है, आपका जो पोजीशन है वो बहुत सही है। आप बताएं क्या वजह है, रीजन दें। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने बोला कि अल्लाह अगर चाहेगा, मैंने उसमें जो कहा उसकी कंप्लीट वीडियो, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अदालत में खड़े होकर आप अपनी मनचाही बात नहीं कर सकते। आपसे जो पूछा जाएगा आपको सवाल। मेरे ख्याल से देखिए गुलजार भाई, एक मिनट, मैं आपको एक तरीका बताता हूं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। आप ये कह दें कि भाई हमारे वर्ल्ड व्यू में या हमारे पास इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है। एथियज्म डज नॉट डिस्कस डायरेक्ट मोरालिटी। एथियज्म सिर्फ, अब सुनिएगा, सिर्फ रिजेक्शन है किसी भी डॉगमा या सुपरस्टिशन का। हमारी कोई मॉरल किताब नहीं है मुफ्ती साहब। मुफ्ती शुमाइल ने जो वीडियो बनाया था, मैं डिलीट भी कर देता हूँ, मेरी बात सुन लें। सिर्फ नहीं, आपकी मोरालिटी है, देखिए आपकी, ऐसा ना कहें, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन आपकी मोरालिटी है। वो मोरालिटी ये है कि आप मोरालिटी, सर मैं, मेरी बात सुन लीजिए, वो मोरालिटी आपकी है जिसका जो बुनियादी फलसफा है वो है फ्रीडम और कंसेंट। आप मुझे बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हैं कि नहीं, ये आपकी मोरालिटी है या नहीं है? अच्छा मुफ्ती साहब, आप लोग मुझे बोलने तो दे रहे हैं मगर बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। पहला नहीं, आपने एक ऐसी बात कही ना, तो इसलिए, अच्छा, और ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी, इसलिए ये ना कहे कि हमारी कोई मोरालिटी। बात करेंगे मुफ्ती साहब, एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी मोरालिटी सब्जेक्ट, चलो मैं मुफ्ती शुमाइल का दोबारा से हमारी मोरालिटी को जज कैसे कर सकते हैं? अच्छा मुफ्ती शुमाइल साहब, मैं आपको इतना प्यार दे रहा हूँ कि चले मैं सवाल नहीं करता, मैं जवाब दे। आपने उस शॉट में मुझे प्यार नहीं दिया। अच्छा तो जवाब तो सुन लें यार, आप मुझसे बोलने भी नहीं दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुने। आप मुझे सिर्फ सुनने के हौसला पैदा करें। आप रिपीट कर रहे हैं ना, बार-बार आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। आपको लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट नहीं 1 मिनट बोलने दीजिएगा। हाथ जोड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ। हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन आप अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में, तो फिर इंशाल्लाह आपका सवाल ले लेंगे। जी ठीक है। ग्रेटर गुड प्रिंसिपल एक कोई चीज होती है, ठीक है। मेरी नजर में इसलिए गलत है कि इससे आगे जाके बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, जो कि बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मुफ्ती शुमाइल ने जो भी वीडियो बनाया, अगर इन्होंने कहा अल्लाह कहेगा बहन भाई का सेक्स जैसे पहले हुआ था, तो यह कर लेंगे, बस ये ना हाँ या ना में जवाब दे दें कि क्या अल्लाह की ये बात मानेंगे, इनकार कर देंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम आपको 1 मिनट बोलने देंगे, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जैसे जैसे हम आपको मौका देते हैं अपनी पोजीशन क्लियर करने का, आप फौरन बायोलॉजिकल फैक्टर ले आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं भाई उन दोनों को औलाद नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको अथॉरिटी रीजन बताया, मैंने आपको जो ना अथॉरिटी रीजन है, मैंने आपको सिनेरियो दे दिया ना अथॉरिटी रीजन है। अच्छा, मैं और ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं बस एक सिंपल सा इस तरीके से चले जाता हूँ। ठीक है, आपने सारे आपने सारी रीजंस दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ इसी सवाल को दूसरे अंदाज से। ठीक है, अगर ये सारी रीजंस ना होती दुनिया में, तो क्या उस वक्त इंसेस्ट जायज होता, सही होता आपके नजदीक या नहीं होता? मुझे ये बताए सिंपल सा। अगर ये सारी रीजंस नहीं होती तो सही होता। ओके, अगर ये सारे रीजंस नहीं होते, आपके पास मॉरली क्या राइट बनता है कि आपकी जो आपकी औलाद है वो बहन भाई के सेक्स से हुई? आप एथियस्ट से पूछ रहे हैं। अरे भाई, आपने जो रीजन दिया, सवाल ये हो रहा है कि इंसेस्ट आपके नजदीक गलत क्यों है, और जो रीजंस आपने दी कि ठीक है चले, अगर हम उन्हें वैलिड मान भी लें, वैलिड है नहीं, अगर मान भी लें, तो अगर वो वैलिड रीजंस नहीं होते तो आप इंसेस्ट को सही समझते या नहीं सही समझते? मुझे इतना बताइए। आप सिर्फ ये मुझे बता दीजिए जो मैंने रीजंस बताए थे। नहीं बताऊंगा जनाब, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा है कि अगर जो वैलिड रीजंस आप सो कॉल्ड वैलिड रीजंस जो आपने दिए हैं, वो अगर नहीं होते, तो क्या उस सिचुएशन में इंसेस्ट दुरुस्त होता या नहीं होता? मुझे ये बताएं, बस सिंपल सा, हाँ या ना। ओके,
क्या जो मैंने रीजन दिए आप उससे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरे भाई सारे रीजन से डिसएग्री करता हूं और बता भी दिया क्यों करता हूं, क्यों आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखी जा रही है जहां पे वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये रीजंस, इन रीजंस का वजूद ही सिरे से नहीं होता तो ऐसे मौके पे आप इंसेस्ट को सही समझते या गलत समझते, मुझे ये बताइए, बस सिंपल सा सवाल है। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जिसका आंसर जरूरी नहीं है देना, क्योंकि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती शुमाइल साहब आप खुद बताएंगे। मैं इसलिए अल्लाह मुफ्ती, अच्छा और मैं वहीं आ रहा हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं आपसे बात करूंगा, सही जवाब के बाद मैं अल्लाह ही का हुक्म पे आऊंगा। एक सेकंड, इस सवाल के सही जवाब के बाद मेरी बात सुने, इस सवाल के आपके सही जवाब के बाद मैं वहीं आऊंगा। मैं आपसे बात करूं गुलजार भाई, आपके सवाल का जवाब देने के लिए इतनी मोटी किताब खोल के बैठा हूं मैं, मेरे पास तो जवाब है। एक चीज करते हैं, मुफ्ती यासिर साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने रीजंस दिए, अगर उन रीजंस का वजूद ही सिरे से न होता तो क्या उस वक्त इंसेस्ट को आप सही समझते या गलत समझते? सिंपल, यस और नो। ये पता आपका हाइपोथेटिकल सवाल क्या है कि अल्लाह क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जो आपने भी तो गुलजार भाई हाइपोथेटिकल सवाल किया था कि अगर अल्लाह हुक्म देगा तो हम कर लेंगे, ये भी तो हाइपोथेटिकल ही है। वो पिछले हिस्ट्री से रिलेट करता है। तो अब हम माजी में तो नहीं जा सकते ना, हम माजी में तो नहीं जा सकते और अल्लाह का हुक्म आगे आएगा नहीं। इसका मतलब अल्लाह की सब्जेक्ट में मुफ्ती साहब भेज लो। एक मिनट, जहाँ पे तो आपने ये कह रहे हैं कि पिछले रिलेट करता है, तो फिर वीडियो के वक्त आपने ये क्यों कहा कि मुफ्ती साहब ये काम करने के लिए तैयार बैठे हैं अगर अल्लाह इजाजत दे दे? तो क्या मैं इस तरह इस बात को ये लोगों के सामने पेश कर सकता हूं कि अगर ये रीजंस नहीं होते या अगर सोसाइटी इसे सही करार दे देती तो फिर गुलजार एलिया साहब, हमारे जो गुलजार एलिया साहब है, वो अपने बहन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या ऐसा किया करना ये सही बात होती? ऐसी बात लोगों के दरमियान फैलाना, या ये गलत बात होती? मुझे ये बताइए। चले आपसे नहीं बन पड़ेगा उसका जवाब, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं और खुद नतीजे निकाल रहे हैं। ये अदालत है आमिर भाई, आपके मुताबिक अगर आप इसे सही समझेंगे गलत समझेंगे, ये बताइए। मैंने तो कहा था वकील बना ले, आप मानते ही नहीं, आपने दुआएं शुरू कर दी। आपकी मैं वीडियो चला दूं मुफ्ती शुमाइल, दूध का दूध पानी का नहीं हो जाएगा। हिम्मत नहीं सुनने की अपनी कॉल, आप खुद ही अपनी कॉल नहीं सुनना चाह रहे हो, आप अपनी वीडियो खुद भी नहीं सुनना चाह रहे, आपने ऐसी बात कर दी थी। मैं सुना नहीं सुनना होता तो मैं अगले ही दिन अपलोड नहीं करता, ठीक है? मुझे खुद नहीं सुनना होता तो पूरी वीडियो को अगले दिन अपलोड ही नहीं करता। मैं आपसे सिंपल सा सवाल ये है, अगर मैं इस तरह बाद में पता चलता है मैंने गलत बात बोल दी, ऐसी बात नहीं करें गुलजार साहब, आपसे इंसेस्ट का मसला हल नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दे। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं गुलजार एलिया के ताल्लुक से ये बात लोगों के सामने कहूं कि अगर ये रीजंस नहीं होते और या सोसाइटी से गलत नहीं समझती तो गुलजार साहब इस काम को करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मेरा इस तरह लोगों के दरमियान बात फैलाना, ये बात कहना, ये आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या अल्लाह ऐसी चट्टान बना सकता है जो उठा ना सके? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब ना डिबेट में नहीं दिया जाता। हाइपोथेटिकल नहीं कर रहा हूं ना, इंसेस्ट का मसला खत्म हो गया, अब ये दूसरी बात कर रहा हूं। मैं अगर लोगों को कहूं लाइव आकर या शॉर्ट बनाकर, वीडियो बनाकर कि जो रीजंस गुलजार साहब ने दिए हैं, अगर वो रीजंस ना मौजूद ना होते तो फिर गुलजार साहब तो तैयारी बैठे हैं, वो रीजंस खत्म हो, बस वो चढ़ जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं लोगों को, क्या ये कहना आमिर भाई आपको मैं $1000 दे रहा हूं, मेरा वकील बन जाओ, उनको प्लीज चुप करा दो यार। आमिर भाई $1000 भेज रहा हूं अभी अपना। मेरा अकाउंट नंबर लिख लें। वैसे एक बात है, ये लाइट डिस्कशन हो रहा है मुफ्ती शुमाइल, में माजरत खां, ये एक बात है, पता है जैसे हजरत मोहम्मद दुआ नहीं करते थे कि यार हजरत उमर को इस्लाम कबूल करा, हम चाहते हैं आमिर भाई को मुल्द बना दे। इनकी हाजिर जवाबी आप लोगों के मुतालिक कुरान में कह दिया गया है, यदउहुम इलल मग़फ़िरत व यदउनहुम इलन नार, कि बहुत से लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, वो अल्लाह ताला जन्नत की तरफ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुन लें आप, जब अल्लाह के नबी का आपने नाम लिया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हजरत उमर को जन्नत की तरफ बुलाया और आप आमिर भाई को जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, और कोई फर्क नहीं। आपने जन्नत देखी है? आपने तो जन्नत का सबूत है आपके पास? ये बगैर सबूत के नहीं हम बात मानते हैं। आप बताएं जन्नत है जो हम आमिर भाई को हम जन्नत से हटा रहे हैं, सबूत नहीं जन्नत दोज़ख है। तो गुलजार भाई को एकदम मौका मिला कि मौजूद चेंज करें। अच्छा मुफ्ती यासिर साहब, हम अच्छा मुझे वकील बना दिया है गुलजार भाई मुझे वकील बना दिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखें, एक एथियस्ट होता है, उसके पास अब तो थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूं। अच्छा आमिर भाई, बिफोर आप स्टार्ट करें प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मुफ्ती शुमाइल वाला जो वीडियो है उसमें मैंने ये कहा था, जो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि
کیا اللہ نے جو سیکس بہن بھائی کا میری بات سنیں، میری بات سنیں، ابھی جو سوال ہے نا، ابھی سوال کو لیتے ہیں نا. عامر بھائی ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. یہ حضرات گمراہ کرتے ہیں، غلط بات کہہ کے. میں نے بات کی کہ آپ نے جو ٹائٹل لگایا ہے، آپ نے یہ لکھا ہے مفتی صاحب یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس اللہ اجازت دے دے تو مفتی صاحب تیار بیٹھے ہیں. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سوسائٹی اجازت دے دے، یہ ریزنز نہ ہو تو گلزار صاحب چڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے اس سینٹنس کو، اس جو کام حرکت آپ نے کی ہے، غلط حرکت کی ہے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے اسی بات میں جو ہے خیر ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس مسئلے سے گلزار صاحب آپ ایسے کریں. سب سے پہلے تو گلزار صاحب ایک منٹ، سب سے پہلے تو جو مفتی صاحب آپ کے سامنے ایک درد رکھ رہے ہیں نا، کہ جو جملہ آپ نے کہا ہے، یہ واقعی میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پر جائیں. آپ پہلے معذرت کر لیں لائیو اس پر، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑا معذرت کیا، ہم ویڈیو بھی ہٹا دیں گے. ہم تو بھائی بندی پہ یقین رکھتے ہیں. مفتی شمائل صاحب، آپ کا جو ویڈیو میں ٹائٹل بھی چینج کر دوں گا، معذرت بھی پبلکلی میں کر لوں گا. آپ صرف یہ بتائیں، آپ ابھی بولیں. کر لیں، کر لوں گا نہیں، کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھے. اچھا میں میری بات تو پوری سننے دیں بھائی، میری بات تو پوری سن لیں. مفتی شمائل صاحب میرے پیارے اب تو آپ کے وکیل نے بھی مشورہ دے دیا. یہ موکل مطلب دیکھیں یہ غلط ہو جائے گی نا، آپ کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے وکیل اور موکل کے. یہ وکیل لگ رہا ہے امبر ہرڈ کا وکیل ہے، خود ہی ان کو ہروا دے گا. مجھے لگ رہا ہے امبر ہرڈ کا وکیل ہے. یہ بتائیں مفتی شمائل صاحب، ایک سیکنڈ. اچھا گلزار صاحب ایک منٹ، وہ میری بات رہ گی نا بیچ میں. میری میں خود جونی ڈیپ کو ٹینشن نہ لیں. اچھا میری بات سنیں، دیکھیں. اچھا گلزار بھائی دیکھیں، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ایک ملحد کے پاس سب سے بڑا ایج جو ہوتا ہے وہ اس کی انفرادیت ہوتی ہے، تفرد. یہ ایک مسلمان کے پاس تفرد نہیں ہوتا. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا میری ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ اس کے پاس حجت ہوتی ہے، مسلمات ہوتے ہیں قرآن و حدیث، جس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. اگر سر اٹھائے گا دائرہ اسلام سے خارج. تو ہمارے نزدیک شریعت سب سے اوپر ہے. ایک ملحد کے پاس اس کی انڈیویجویلٹی جو ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ایج ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ میری ذاتی رائے میں مجھے پسند نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، میں کوئی روک نہیں سکتا، قانون سازی اس والے سے کر. سمپل یہ بات کریں اور آگے چل دیں. اتنی یہ بیسیکلی پتہ کیا ہے، آپ کو یہ ایشو سب سے زیادہ امبیرس کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اس کا کبھی قیامت تک جواب ہو ہی نہیں سکتا قانونی سطح کے اوپر، کیونکہ آپ کا ایک اصول ہے، وہ ہے لبرٹی، لبرلزم. آپ اس کو ڈیفائی نہیں کر سکتے. لہذا آپ اپنی ذاتی رائے کہہ کر آگے نکل جائیں، اسی میں عافیت ہوتی ہے. اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. اوکے عامر بھائی، آپ کا جو مشورہ ہے سالڈ ہے. اب سنیں مفتی شمائل صاحب، حضرت جو آپ مجھ سے ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں نا، حضرت آدم کا سیکس والا ریئل واقعہ ہے، تو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، ویڈیو ہٹ جائے گا، اگر اللہ آپ کو آج بولے بہن بھائی پہ چڑھ جاؤ، کیا آپ چڑھ جائیں گے؟ وہ ٹاپک نہیں ہے نا، وہ ٹاپک نہیں ہے نا، ٹاپک ہے آپ کا مسئلہ. مفتی صاحب آپ کا آپ میوٹ ہیں، پلیز میوٹ کریں، انمیوٹ کریں. آپ انمیوٹ کریں. اچھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر اللہ اجازت دے دے تو کیا آپ چڑھ جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے بات کریں، بہت اچھی بات ہے. میں اب سنیں میری بات. اگر جو ریزنز آپ نے دیے وہ ریزنز نہیں پائے جاتے اور سوسائٹی اس کو صحیح سمجھتی، آپ اپنی بہن پہ ابھی جا کے چڑھ جائیں گے؟ یہ سوال تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ واقعہ ہو چکا ہے. سوال کا جو جواب ہوگا نا، پہلے آپ وہ جواب دیں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا وکیل کی موجودگی میں بول رہے ہیں کیس خراب کر دیں گے، پھانسی لگ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں وکیل ہوں، $1000 دیا پھر بھی پھانسی لگنا چاہ رہے ہیں. میری بات مانے نکل جائیں. بھائی مفتی شمائل اچھا میں اچھا دیکھیں آپ اس عمل سے نا، وکیل کی موجودگی میں ایک منٹ مفتی صاحب، وکیل کی موجودگی میں جو آپ کر رہے ہیں یہی امبر ہرڈ نے بھی کیا تھا، تو آپ اس وقت امبر ہرڈ بنے ہوئے ہیں. یار میں ٹائٹل تو چلو بغیر کسی کنڈیشن کے چینج کر دیتا ہوں. میرا یہ نہیں کہ آپ کا دل دکھا مفتی شمائل، میں ٹائٹل چینج کر دیتا ہوں. صرف یہ بات آپ کو کلیئر کرنی چاہیے کہ جو بہن بھائی کا سیکس اللہ نے الاؤ کیا تھا، اس کو اگر آپ کو کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کو منع کریں گے؟ کر دیں گے؟ آپ زیادہ اس کے محتاج ہے، کیونکہ ہمارا جو پوزیشن ہے یہ لوگ جانتے ہیں، ہماری مورالٹی آبجیکٹیو ہے اللہ کی طرف سے. آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. اگر ریزنز ختم ہو جائے تو کیا آپ چڑھیں گے بہن پہ یا نہیں چڑھیں گے، یہ آپ کو کلیئر کر، آپ زیادہ محتاج ہے کہ آپ کلیئر کریں. دوسری بات، میری بات سنیں، مسئلہ ٹائٹل ہٹانے کا نہیں ہے، مسئلہ منافقت اور خیانت کا ہے. یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، یہ کام آپ نے پہلے مفتی یاسر صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے، کہ یہاں آپ اچھے بنتے ہیں، وہاں جا کر بالکل آپ کی جو شیطنت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اور دوسرا پہلو ایک دم آپ مہمان کے ساتھ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. پرسنل اٹیک آپ نے کیا ہے، میں آپ پہ پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھے مخلص سمجھے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں.
اگر میں آپ کا خیرخواہ نہیں ہوتا نا تو میں آپ کو ابھی جو لائیو سب کے سامنے دعوت دے رہا ہوں اسلام ہی حق ہے, اسلام کی طرف آ جائیں, یہ نہیں دیتا. ورنہ میں آپ چاہتا کہ آپ جائیں جہنم میں جائیں, ہمیں کیا لینا دینا ہے, میں آپ کے لیے خیرخواہ ہوں تو میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کی اپنی رائے ہے, آپ کے جو نظریات ہیں, ہمارے جو نظریات ہیں, اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن کیا مفتی یاسر صاحب نے یا میں نے یا بعض جو دیگر علماء کرام ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کے جملے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں؟ آپ سے علمی اختلاف اپنی جگہ پہ, یہاں پہ جو آپ سے بات ہو رہی ہے اچھے انداز میں بات ہو رہی ہے, ایک فرینڈلی ماحول میں بات ہو رہی ہے, باہر جا کر اب میں الگ ویڈیو چڑھاؤں جس میں میرا الگ ہی رنگ نظر آئے, تو کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ ایسا انسان یہ دوگلا انسان نہیں ہے؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے. کہہ رہے ہیں آنسر, کہہ رہے ہیں جی آنسر. بالکل بالکل. آپ کا ویڈیو کی میں نے آواز سنائی ہے, اس حساب سے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے بہن بھائی کے سیکس کو. بس آپ بولتے ہیں بہن بھائی کا سیکس غلط تھا حضرت آدم کا, میں ویڈیو بھی ہٹا دوں گا, معافی مانگ لوں گا. نہیں, یہاں پہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہاں مسئلہ یہ آپ ہے کہ جواب آپ ہی نے نہیں دے میری رہے بات کو کس طرح پیش کیا ہے جناب. آپ نے بھائی. جس آپ طرح ایک تو پہلے دنیا میری نے ویڈیو سنی چل ہے, وہ رہی, اردو اس میں کے ہے, بعد مفتی آخر صاحب میں وہ جو اردو آپ نے میں. کمنٹس دیے ہیں, جو لوگ اس شارٹس کو بھی پورا دیکھیں گے تو شارٹ کو پتہ چلے گا کہ لاسٹ میں جو آپ کی جو آواز آئی ہے وہاں پہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ کوئی ایک علمی بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا, یا جو مخلص ہوتا ہے, جو منصف ہوتا ہے کہ حق کی تلاش میں ہو, وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ جواب علمی دے گا, وہ پرسنل اٹیک نہیں کرتا ہے جیسا کہ آپ کرتے ہیں. تو بس میں آپ سے پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا, بحث نہیں کرتے. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں, آپ سے میں گلزار صاحب سے بتا رہا ہوں, دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں مطالبہ کر رہا کہ آپ ٹائٹل کو ہٹا دیں, آپ کو نہیں ہٹانا ہے, مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. میرے نبی کے متعلق جب ایسی باتیں کہی گئی, اس سے بڑی بڑی باتیں کہی گئی, تو ہمیں دو چار گالیاں آپ کی طرف سے مل جائے تو پھر یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. آپ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں لیکن ہمارا فائدہ ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ٹائٹل کیا دیں. بس مسئلہ دراصل جو میں آپ سے بات آج کرنا چاہ رہا تھا, وجہ یہ ہے کہ بھائی جہاں اختلاف ہے اس کو علمی اختلاف رکھیے, علمی انداز سے جواب دیجیے. اس طرح بدتمیزی اور جو بازاری انداز ہوتا ہے اپنے چینلز پہ یہ اختیار نہ کریں. بھائی آپ مفتی یاسر صاحب بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا, اور ہمارے پاس زیادہ چیزیں ہیں ایسا کرنے کی, ایسا کرنے کے لیے کہ ہم لوگ آپ کے خلاف اس طرح کی چیزیں پیش کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے, ہمارا وہ طریقہ نہیں. اب بھی جو ہے اخلاقی ان کو میرے خیال سے گلزار بھائی اب تو بات ختم ہو گئی, اس کو تسلیم کر لیں, بات ٹھیک ہے, ٹھیک تو کہہ رہے ہیں صاحب سے ہماری دوستی ہے. جی ہاں کافی باتیں ہو گئی. مفتی شمائل صاحب دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ آپ بول دیں حابل قابل نے بہن بھائیوں پہ غلط چڑھے تھے, ہم سمجھ جائیں گے آپ کی موریلٹی کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, مفتی یاسر صاحب ایک سوال کا آپ جواب دیں. ہمارے ٹویٹر پہ ہم آپس میں تفریح کر رہے تھے, یہ بتائیں کیا مفتی صاحب سے آپ دوسرے نمبر پہ پوچھ لیں, آپ نے پہلے میرا سوال کیا نا, میرا جواب سن لیں, اس کے بعد پھر میں آج آپ سے یہ گفتگو کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر آپ مفتی صاحب بات کریں. آپ نے کہا کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں, میرا سمپل الزامی جواب یہ ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر ریزنز نہ ہو جو آپ نے بیان کی اور سوسائٹی سے صحیح سمجھ لیں تو آپ انسیسٹ کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں. بس جزاکم اللہ خیرا, اور میں آج کچھ نہیں بولوں گا. زبردست. اچھا, اور دوسری چیز اخیر میں جاتے جاتے گلزار صاحب, آپ کو اگر میری زبان سے میرے الفاظ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو پھر معافی چاہتا ہوں. اور خدا کی قسم جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عامر حق کو گمراہی کی طرف بلانا چاہتے ہیں, ہم اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے مسلمان ہیں دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہوں اور ہم اور آپ دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں. جزاکم اللہ. ویسے بھی گلزار بھائی یہ تو ون ون ہے نا, یعنی اگر آپ مان لیں اسلام لا کر آپ کا انتقال ہوا اور جنت جہنم موجود نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر موجود ہے تو اسلام لا کر انتقال ہونے میں آپ کا فائدہ ہے. کیا خیال ہے؟ پاسکل ویجر, مفتی صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, پاسکل ویجر والی بات ہو گئی نا کہ 10,000 میں سے کون سا خدا ٹھیک ہوگا, یا آرگومنٹ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ ہو. یہ اعتراض جو نہیں, تو ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے نا کہ آپ ہندوازم یا فلاں, چونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو اوپر والا ہے وہ ایک ہی ہے, اس کی تشریح الگ الگ ہوئی ہے. تو جو آپ تو لیکن اس وقت اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ آپ کسی بھی خدا کو نہیں مان رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں اللہ موجود ہے اور اس نے انسان کے ساتھ کمیونیکیشن کیا, یہ تمام مذاہب اس کے اوپر متفق ہیں. آپ وہ لے لیں نا جس کے اوپر تمام مذاہب متفق ہیں, اتنا مان لیں. تمام مذاہب اس پہ متفق نہیں ہیں, ورنہ کوئی ہندو جو ہے نا وہ کہتا ہے یار قرآن تو اچھی کتاب ہے, وہ کہتا ہے قرآن غلط ہے. میں کہوں تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی اوپر والا موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تمام مذاہب اس پر متفق ہیں. ہاں, اس سے پہلے لوگ 1000 سال پہلے متفق تھے کہ سورج ان کا خدا ہے, آج لوگ نہیں اتنا مانتے ہیں. تو یہ جو متفق ہونا زیادہ یہ گارنٹی نہیں, سچ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ذات کے اوپر آج کے ہندوؤں سے آپ پوچھیں, اس وقت اگر آپ مشرکوں کی مثال لیں گے تو ہندو ہی ملے گا نا آپ کو. تو ہندوؤں سے آپ پوچھیں کہ کتنے خدا ہیں, سپریم بینگ ایک ہی ملے گا.
चाहे वो सूरज की पूजा करें, चांद की पूजा करें, सुप्रीम बीइंग एक ही मिलेगा। तो आप एक सुप्रीम बीइंग को जो कम्युनिकेट करता है इंसान के साथ मान लें, तमाम मज़ाहिब इसमें मुत्तफिक हैं, क्या मसला है? तो आप कह रहे हैं क्वांटिटी से यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा तादाद मान रही है तो वो बात सच है, आप ये नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ और जन्नत मौजूद नहीं हुई तब भी आपका कोई नुकसान नहीं, और अगर आपका इंतकाल ईमान की हालत में हुआ, जन्नत मौजूद हुई, तो आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो जिस चीज में फायदा है आप उसको तस्लीम कर लें। और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कौन से खुदा को मानूं, उसका मैंने जवाब दिया कि जो चीज मुत्तफक अलैह है तमाम मज़ाहिब में, उसको आप तस्लीम कर ले, बाकी बाद में देखी जाएगी। अगर वो स्पिनोजा का गॉड निकला, वो कहेगा भाई तुम तो जन्नत दोज़ख का वो कौन सा मेरा है ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? मुफ्ती साहब देखें ये आर्गुमेंट तो डिफरेंटली जा रहा है। अच्छा एक बात बताएं मुफ्ती साहब, सब छोड़ें, अल्लाह पाक की क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? जैसे आज बहन भाई का सेक्स अल्लाह ने अलाउ मना कर दिया, पहले अलाउ कर दिया था, आपकी नजर में क्या इसका जवाब है? इल्मी जवाब दीजिएगा। सवाल आपका यह है कि क्या अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव है या वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है? बेस्ड ऑन हजरत आदम के बच्चों को जो बहन भाई एक दूसरे पे चढ़ गए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया, देखिए चढ़ने का लफ्ज ना बोले, चूंकि इसको हम मुहज़्ज़ब अंदाज से बात कर सकते हैं। मुबाशरत कह देते हैं, मुबाशरत करना या प्यार करना। मुबाशरत नहीं, मुबाशरत है, हम निकाह कह लेना, चूंकि निकाह हुआ ना उनके दरमियान। तो मसलन यही फर्क है हमारी और आपकी। तो लॉन्डी से क्या मैं बोलूंगा, लॉन्डी से क्या निकाह होता है? आपके यहाँ जो है जो चढ़ना है वो इतना रेगुलर, इतना नॉर्मल है। हमारे यहाँ ये लफ्ज हम इसको, हमारे कान भी इसका ईबा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है निकाह की फ्रेमवर्क में उस रिलेशन को देखते हैं। और रही बात स्लेवरी की, उस पर तो मैं इतनी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, उसको मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपका सवाल, मैं सिर्फ सवाल समझना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं बहन भाई का अगर निकाह हो गया तो वो नहीं। मैं अच्छा, तो अब देखे मेरी बात। अच्छा गुलजार साहब अब टोक कौन रहा है? अब टोक कौन रहा है? आप मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूं। मैं आपका सवाल समझना चाह रहा हूँ गुलजार भाई। ओके आमिर भाई सॉरी। आप ये कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से जो मोरालिटी आती है क्या वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? आप पूछ रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल है कि देखें, एज एन एथियज्म हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ज्यादातर इसमें अग्री करते हैं, ये बात आप मानते हैं कि हम कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग दावा करते हो कि अल्लाह की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, तो नहीं, ये दावा नहीं करते, ये दावा नहीं करते। अल्लाह की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि मसलन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये बात आई थी कि ऊंट की जो चर्बी है वो हराम है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो हलाल है। तो ये सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई? नहीं, जमाना बदल गया। अरबी मायने क्या है मुफ्ती साहब? आप कह रहे हैं निकाह होना चाहिए, बहन भाई तो वो कर सकते थे। मैंने आपको एक मिसाल दी है, उससे ये साबित हुआ हमारा मौक़िफ़ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपका व्यू है, इसमें कोई बहस नहीं मैं करूंगा, आपने अपने लिहाज से सही जवाब दिया। रहा सवाल, आपने निकाह बोला, उस बहन भाई में निकाह हो गया था हाबिल काबिल, तो निकाह का अरबी में मुझसे ज्यादा आपको मतलब पता है क्या होता है? हाँ, लेकिन हम सही अल्फाज के इंतखाब की सलाहियत तो रखते हैं ना। मतलब क्यों हम अपने आप को लो क्लास बनाकर पेश करें? वरना हम अगर इस वक्त देखें, इस वक्त हम माँ बहन की गाली अगर देने लगे तो क्या आप इसको सही समझेंगे? मुझे यकीन है कि आप इसको सही नहीं समझेंगे, जाहिर है कि गलत समझेंगे, चूंकि ये एक अच्छी गुफ्तगू नहीं है। यानी हमारे पास अगर सहूलत है, हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों उस सहूलत को इख्तियार न करें? ये मैं कह रहा हूँ ना। ये तो एक मैंने कोई गलत मुतालबा तो नहीं किया आपसे। सही मुफ्ती साहब आपकी बात दुरुस्त है। ये बताएं, अगर अल्लाह की मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? ये तो हम लोग भी कहते हैं मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मैंने आपसे ये नहीं कहा, देखिए वही बात है कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो मोरालिटी आती है वो ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। हमारे और आपके दरमियान फर्क ये है कि आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के मुनकिर हैं, हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की मोरालिटी के कायल हैं। ये फर्क है। आपका पॉइंट आ गया है मुफ्ती साहब, इसमें मजीद हम बहस नहीं करते। आई रिस्पेक्ट यू एक्चुअली, आप जवाब सही देते हैं। तो हाँ, इस तरह हम अच्छे आई थिंक मोड़ पे इख्तिताम कर सकते हैं बात का। क्यों आमिर भाई? बिल्कुल। एक मैं प्यार का जेस्चर बढ़ाना चाहता हूँ, एक मैं जेस्चर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार हम लोग चाहते हैं हमारी गुफ्तगू चले, हम दुश्मन ना हो, दोस्त की तरह हो। मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ मुफ्ती शुमाइल साहब, बिल्कुल कर रहा हूँ डिलीट, विदाउट एनी कंडीशन। अब देखिए, आप मुझे डालिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ।
That's it. मैं ये मेरा बात है, that's great. आमिर भाई मेरे दोस्त हैं, मुफ्ती यासिर साहब बैठे हुए। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि मुफ्ती यासिर ने एक वीडियो का बोला था ना, मैंने विदाउट कंडीशन हटाया था। मुफ्ती शमाइल साहब मैं वीडियो हटा रहा हूँ विदाउट एनी कंडीशन। दैट्स इट। ये मेरी तरफ से पॉजिटिव। मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं 2 मिनट मुझे बस दे दें। देखिए अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें बाज लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हमारा ये दावा है कि ऐसा हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में निकाह हुआ हो। अगर गुलजार साहब ने सिर्फ उतना ही क्रॉप करके ना चढ़ाया होता, पूरा चढ़ाया होता, तो ये बात वाज़ेह हो गई होती। मैंने उसी वीडियो में ये कहा है कि जनाब औलाद आदम के दरमियान निकाह कैसे हुआ, नस्ल आगे कैसे बढ़ी, इसका इल्म हमें नहीं है। ना कुरान करीम में इसकी वजाहत है, ना सही अहादीस मकबूला में इसकी वजाहत मिलती है। ये जो रिवायत मिलती है कि आपस में भाई बहन के आपस में निकाह हुआ आदम की औलाद में, ये एक इजराइली रिवायत है। और इजराइली रिवायत का जो शरीयत में हुक्म है वो सिंपल मैंने उसमें बताया था कि 3 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये है कि इजराइली रिवायत में कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही हो जो हमारी शरीयत के बिल्कुल मुवाफिक है, यानी हमने शरीयत में जो हुक्म आया है वही हुक्म उसमें है, तो फिर हम उस इजराइली रिवायत को कबूल करेंगे। अगर दूसरी सूरत पाई जाए जो कि ये है कि शरीयत ने कुछ और बताया है और इस्राएली रिवायत बिल्कुल उसके मुतजाद चीज को ला रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इस्राएली रिवायत को रिजेक्ट करते हैं। तीसरी सूरत ये पाई जाती है कि इस्राएली रिवायत कोई ऐसी चीज बताए कि जिसमें किताब व सुन्नत खामोश हो, जिसमें औलाद आदम का निकाह है। क्यों? वो इस तरह कि इस्राएली रिवायत में है कि हजरत आदम की औलाद में इस तरह निकाह हुआ, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी वजाहत कहीं नहीं है कि हजरत आदम की औलाद में निकाह किस तरह हुआ। ये एक तारीखी चीज थी, इस पर कुरान खामोश है। तो ऐसी चीज के मुतालिक ऐसी इस्राएली रिवायत के मुतालिक उलमाए इस्लाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि हम इसमें तवक्कुफ इख्तियार करते हैं। यानी ना हम ये कहेंगे कि ऐसा ही हुआ था, ना हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि खामोशी इख्तियार करेंगे। तो मुफ्ती तकी उस्मानी क्यों खामोशी आप मुझे ना एक मिनट मुफ्ती साहब आप पॉइंट ये जा रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी की तफसीर में निकाह का जिक्र है, तो क्या साहबा भी झूठ बोला? आप फिर कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी ने तफसीर में गलत बोला है कि निकाह हुआ? नहीं गुलजार साहब फर्क समझे। ये कई तफसीर के अंदर ये वो बता रहे हैं आपको कि इसराइलियात में एक रिवायत या खबर या एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है जी, और वो इस्राएली रिवायात हमारी तफसीर की किताबों में ही है, यानी ऐसा नहीं कि हम बाइबल में जाकर निकाल कर लाए हैं। असल में यही मसला हुआ मुफ्ती साहब, इन्होंने शायद मेरी वो बात समझी नहीं है, तो शायद इसीलिए आखिरी का हिस्सा इन्होंने काट लिया हो। इस्लाम का जो मौक़िफ़ है इस मसले में वो ये है कि हम तवक्कुफ इख्तियार करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हज़रत आदम की नस्ल कैसे बढ़ी, मैं कहूंगा वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं मालूम है। और अब्दुल्ला बिन ने तो कह दिया था, अब्दुल्ला बिन साहबा क्या झूठ बोल रहे थे, उनको पता नहीं था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहब का रिवायत है। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद की तो ये रिवायत नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत नहीं है। और जो तकी उस्मानी ठीक है, काब अल-अहबार की रिवायत है जहां तक मुझे याद है। अच्छा, काब अल-अहबार की है, बिल्कुल काब अल-अहबार की है। तो वो इस्राएली रिवायत, मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं भाई। इंसेस्ट को मुझे ऐसा लगा आप जस्टिफाई कर रहे थे, बस इतनी सी बात। लेकिन आपका जवाब आ गया, मौजूदा दौर में तो हम इंसेस्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं डालूंगा। आपका जवाब पूरा दे दिया आपने। तो फिर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात आमिर भाई ने शायद कह दी है, वो रेफरेंस दे रहे थे बनी इसराइल का। आमिर भाई यही कह रहे हैं आप? यानी वो इस तरह होता है, यानी आप इस तरीके समझें कि जब एक बंदा एक आयत की तफसीर लिखता है तो तफसीर के अंदर ज्यादातर ये होता है, और ये उसूल रहा है मुफस्सिरीन के यहाँ, कि वो मुख्तलिफ जो तफसीर हैं, शान नुज़ूल हैं, रवायात हैं, उससे मुतल्लिक कता नजर इससे कि उसकी असनाद क्या है वो जमा करते हैं। मुफस्सिरीन का ये तरीका रहा है, जैसे इब्न कसीर ने किया, तो उन्होंने उसको लिख दिया कि इस बारे में ये भी मशहूर है, मगर ये नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा कतई। राइट, देखें वही बात है, जवाब जब आ जाते हैं उस पर मैं बहस नहीं करता, फिर माहौल खराब होता है। मुफ्ती शुमाइल साहब, एक और मसला तशनीही रह गई। कुरान में फिर हाबिल कबील के कत्ल का, कव्वे का, उसका पते मंजर क्या है? जो कत्ल हुआ है, किसका कत्ल हुआ है? वो उसके मुख्तलिफ पस मंजर मुफस्सिरीन ने बयान किया। हाबिल और काबिल के दरमियान कत्ल तो हुआ है, यानी वो मामला हुआ, लेकिन किस बुनियाद पे हुआ है इस पे उलमा के मुख्तलिफ आरा है। आप जो है किसी भी तफसीर का आप की तरफ रुजू करेंगे, वहाँ पे कई सारे 3-4 से जायद वाक़यात जहाँ तक मुझे याद है गालिबन बयान किए गए हैं। उनमें से अगर आप इस रिवायत को, इसराइली रिवायत को, अगर हम इसे सही नहीं समझते हैं और इसे कबूल नहीं करते हैं, तो फिर जाहिर है जो दूसरे वजूहात हैं वो उसे सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो इसराइली रिवायत है, ये सराहतन इसके ताल्लुक से हम ये कह रहे हैं कि हम तवक्कुफ इख्तियार करेंगे। कुरान ने जितना बताया है ना गुलजार भाई, कुरान ने सिर्फ इतना बताया है कि काबिल को हसद हो गया था। उस हसद के लिए, हसद किसी भी वजह से हो सकता है।
हसद जरूरी नहीं है कि शादी की वजह से, और शादी में ये जरूरी नहीं कि उसी तरह शादी हो जिस तरह आप समझ रहे हैं। हसद किसी भी तरह हो सकता है कि उस एक की इबादत ज्यादा कबूल हो रही है, इसकी दुआएं ज्यादा कबूल हो रही हैं, दूसरे की नहीं हो रही हैं, एक के पास ज्यादा नेमतें हैं, दूसरे के पास नहीं है। हसद की कोई भी वजह हो सकती है। तो हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, इतना हमें कुरान से पता चलता है। जितना हमें पता चलता है उसके हम कायल हैं। सिबलिंग्स के अंदर ना हसद, सिबलिंग्स के अंदर गुलजार भाई हसद इस तरह भी हो जाता है, और ये आम देखा गया घरों में कि माँ एक बच्चे से ज्यादा प्यार करती है ना, तो दूसरे भाई को हसद होना शुरू हो जाता है। हसद तो ये चीज है। अच्छा गुलजार भाई, मैं आपसे ये आखिरी पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफी टाइम बात हो गई। एक कमेंट नीचे आया, उसमें ये कहा जा रहा है कि गालिब कमाल के साथ डिबेट मेरी प्लान हो रही थी तकरीबन 1.5 साल डेढ़ पहले, तो उसको रोकने में आपका हाथ था। जी मुफ्ती साहब, मेरी प्लान हो रही थी। अच्छा, तो उसमें आपका हाथ था गुलजार भाई, ऐसी कोई बात सही है हाँ या ना में बता दें ताकि आगे चलते हैं। नहीं, लाइव कमेंट्स पे इतनी तवज्जो मत दें आमिर भाई, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, आपको मालूम ही है। इसीलिए मैंने कमेंट दिखाया नहीं अभी फिलहाल, मैंने कहा चले भाई ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। और फिर मैं कोई सवाल उठाऊंगा यार, मैं सबसे पहले ना कोई सवाल नहीं उठाता यार, आपका शुक्रिया बहुत बहुत यार, इतना पेशेंस के साथ आपने एक फ्रेंडली माहौल में बात की ना। मैं इसका कायल हूँ कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जज्बात यार साइड पे, हम कोई दुश्मनी नहीं बैठे हुए। गुलजार भाई आप यहाँ आते हैं निहायत इज्जत और एहतराम के साथ, हम आपके साथ पेश आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये माहौल बना रहे, और हम आपके खिलाफ कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, और कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि हम वीडियो बनाकर अलग से डाल रहे हैं और जनाब इस तरह की कोई बात कर रहे हैं जिसको हम अपनी जबान पर लाना नहीं चाहते। जिस तरह हम ये चाहते हैं ना कि हमें ट्रीट किया जाए, हम उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप प्यार देते हैं, मुझे लेते हैं, तो मैं इस चीज का कायल हूँ कि ऐसे प्यार का मतलब प्यार होता है। आमिर भाई थैंक यू, और कोई और बात हो तो कर सकते हैं, वरना थैंक यू सो मच। चलिए शुक्रिया बहुत। अब मजीद जो है मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट यार डिफेंड तो करने आए हैं ना, वरना लोग तो देखो डिफेंड ही नहीं कर रहे थे एथियज्म को। और क्या हर वक्त हमें विन और लूज ही करना है? क्या हम गुफ्तगू नहीं कर सकते जैसे क्रिश्चियंस लोग करते हैं एथियस्ट के साथ? वही माहौल आप लोग भी क्रिएट कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं। कोई डॉक्सिंग नहीं होनी चाहिए। भाई आपने बात कही, इस पर मैं एक बात कह दूं कि हमारे उलमा इस्लाम के ताल्लुक से एथियज्म के खिलाफ इसलिए गुफ्तगू नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं चूंकि उनको इसकी कोई अहमियत का, यानी वो नहीं समझते कि कोई अहम चीज है, इसको कोई तवज्जो भी देनी चाहिए, ऐसे ये इसको कौन मानता है। लेकिन हम थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करते हैं, मैं पर्सनल तौर पर डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि नहीं, कुछ लोगों का ईमान खराब हो रहा है, लिहाजा जब ईमान खराब हो रहा है तो हमें चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, अगर हमारे पास इल्म है तो हम उस इल्म को बांटें, उस इल्म के साथ हम लोगों के साथ गुफ्तगू करें। वरना ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है, हम तो बहुत छोटी चीज है, एक से एक सलाहियत वाला पढ़ा है और एक से एक इल्म वाला पढ़ा है, वो अभी तक आया नहीं है। मुफ्ती साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे पास जो तफसीर आ गई मुफ्ती तकी उस्मानी की, उसमें सहाबा कराम के कॉल भी हैं, तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, नाराज मत होइएगा भाई। तो आमिर भाई इसका जवाब फिर जरूर दीजिएगा। जी, वो सारे अकवाल जो है ना, देखिए हम पहले ही बता रहे हैं, वो सारे अकवाल जो हैं वो उन्हीं एक काबे अखबार से मशहूर हुए हैं। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एपिस्टेमोलॉजी है और इस्लाम की, उसके मुताबिक आप चलें। सहाबा किराम के एक नहीं 100 सहाबा के कौल होंगे, लेकिन सबने लिया कहां से? उन सबने लिया वहां से है। तो जब वहां से लिया है, हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि इन सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, तो अब बात बदल जाएगी। ये तो महज सहाबी का कौल होना। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है, उनके पास काबे अखबार दिन रात उठते बैठते थे, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की बहुत सी बातें जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करते, ये और काबे अखबार उसमें शामिल है, तो ये बात है कि वो इस्राइली रिवायत है, हालांकि अबू हुरैरा कह रहे हैं। अच्छा, इसको ना गुलजार भाई, इसको इस तरीके से समझें कि हम ना तफसीर के अंदर भी मरफू तफसीर को मानेंगे, आसान लफ्जों में समझ लें। यानी ये इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी को जिस तरह मुफ्ती साहब ने बयान भी किया था कि हम इल्मे गैब जो अल्लाह अता करता था अंबिया को, उसके मामले में सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के कायल हैं। सहाबा को कोई खबर नहीं मिलती थी वही के जरिए, लिहाजा कोई भी ऐसी खबर जिसका ताल्लुक गैब के साथ हो और कुरान की तफसीर तशरीह के साथ हो, और जो इस तरह के वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो मरफू पहुंचेगी, वो हम मिनो मानेंगे। सहाबा की तफसीर से सहाबा ने इख्तलाफ किया खुद। जी हाँ, और हमारे यहाँ उसूल फिक्र में ये कायदा है गुलजार भाई कि अगर मान लें किसी एक मसले में, किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर सहाबा में इख्तिलाफ हो जाए, मसलन दो सहाबी, एक सहाबी एक तरफ है, एक सहाबी एक तरफ है, तो जो बाद के लोग हैं उनको ये इख्तियार है कि वो किसी भी सहाबी की बात को मुंतखब करें और दूसरे सहाबी की बात को मुस्तरद कर दें। ठीक हो गया, ठीक है मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच यार, बहुत अगेन बड़ा मजा आया बात करके। हम लोगों ने ना गाली दी ना थ्रेट किया, यही गुफ्तगू होनी चाहिए भाई, बहुत मजा आया बात करके। मुफ्ती यही ऐड करने लगा था, और मैं यही ऐड करने लगा था
हाँ इंशाल्लाह। गुलजार भाई आपसे इजाजत लेते हैं। मैं सिर्फ मैं आपका आई लव यू इसलिए कबूल कर रहा हूँ कि आप जो एक अच्छे मुलीद हैं। नहीं यार, नहीं मैं समझता हूँ आप लोग तो मुझे ज्यादा प्यार इज्जत देते हैं, खासतौर पे मुफ्ती आसिफ साहब मुझे देखते हैं, ले लेते हैं, तो यार एकेडमिकली मुफ्ती साहब आई लव यू, एकेडमिकली आप एटलीस्ट जवाब देते हैं। आमिर भाई थैंक यू सो मच, मुफ्ती शुमाइल साहब थैंक यू सो मच, एंजॉय करें, कोई अच्छी सी हलाल फिल्म देख लीजिएगा मेरी तरफ से। जरूर जरूर। ओके चलिए ठीक है भाई। मैं एक गुजारिश करना चाहता था, ये नाजरीन के साथ मैं मुखातिब इस वक्त होना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है कि देखें, ना म्यूट किया गया, ना अखलाकी बदतमीजी की गई, ना स्टेज से उतारा गया। ये है मुसलमानों का प्लेटफॉर्म, मुर्तदीन का, मुल्हिदीन का प्लेटफॉर्म। देखें, इतनी बात भी अगर करने दे जाते ना, जिस तरह ये यहाँ बात हुई है, तो आप मुझे बता दें, कोई मिसाल मिलती है तो मुझे बता दें, सिवाय इसके कि वो किसी को ट्रैप करके बैठे हो। ठीक है, अच्छा, और ये जो इंडियन मुर्तदीन है, इनमें तो बिल्कुल भी उतनी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो इतने डरपोक हैं कि जैसे ही कोई मुसलमान ऐसा लगता है कि हाँ ये जवाब देने वाला है, फिर नहीं बोलने देंगे, वो उसको म्यूट करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो ये तो हम दिन रात देखते हैं। अच्छा, लोग गलतफहमी कर रहे हैं भाई, मुझे ना $1000 किसी ने भेजा है, सीधी बात है, और मुझे एक ईमेल भी आ रही है, कहते हैं जी $100 पे आपसे डिबेट करना चाह रहे हैं, आपको भेज दें। और मैं कहा दो हाथ मेरे जुड़े, तो भाई मुझे कोई पैसे पूसे नहीं आ रहे, ना मुझे भेजना। बड़ी अरे आमिर भाई ले लीजिए, कहाँ, वरना उधर चले जाएंगे मुर्तदीन की तरफ, क्या मसला है। ये सही है, ये सही है।